की सटीक इंजेक्शन और मिशन में which took place on the 25th of July. At the early hours of 1st August, the translunar injection was carried out, after which the composite module began the final leg of its long journey of nearly 384,000 kilometers for its rendezvous with the moon. The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the moon. An orbit of 288 by 3,69,328 kilometers was achieved at the end of the translunar injection. जी हाँ, ट्रांसलूनर इंजेक्शन किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए बहुत ही आवश्यक परंतु कठिन ऑपरेशन होता है। इस सफल मैन्यूवर के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर निकलकर चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी के द्वारा पहुंचाया गया। पुनः 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के द्वारा चंद्रयान 3 को 160 किलोमीटर के पेरिलून और 18,000 किलोमीटर के अपोलून के साथ चंद्रमा के इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। टीएलआई की तरह एलओआई भी एक बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। इसमें हमें यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि उपग्रह के वेगमान को एक निश्चित बिंदु से घटाया जा सके, अन्यथा उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। एलओआई के सफलतापूर्वक परिचालन के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा को 4 बार और परिवर्तित किया गया। इस दौरान चंद्रमा की अधिकतम ऊंचाई को घटाकर 160 किलोमीटर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में प्रपल्सन मॉड्यूल का लगभग 755 किलोग्राम ईंधन का उपयोग हुआ और चंद्रयान 3 के वेगमान को लगभग 850 मीटर प्रति सेकंड कम कर दिया गया। लैंडर मॉड्यूल को लगभग 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस्त 2023 को प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। पुनः लैंडर मॉड्यूल के ऑर्बिट को 2 ड्यूबूस्ट मैन्यूवर्स के द्वारा 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर 25 गुणे 130 किलोमीटर के इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रस्टेबल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सके। लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सब सिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान चंद्रयान 2 और लैंडर मॉड्यूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है। और संक्षेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूवर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। That is true indeed. We have arrived at the crucial juncture wherein the orbit plane contains the desired landing site at the start of powered descent. We are also happy to announce that live images from the Chandrayaan 3 lander imager camera is being received continuously. The demonstration of soft landing on the moon's surface is no ordinary feat due to the innumerable challenges and complexities involved. The lander velocity has to be killed from nearly 6,048 kilometers per hour without any aid from the thin and tenuous moon's atmosphere. The lunar dust at the time of landing and the craters and boulders scattered over the moon's surface make it further complicated to achieve this. The new and improved Chandrayaan 3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements, provision for full level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test, and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the onboard sensors, propulsion system, and associated guidance, control, and navigation algorithms.
The key findings during the tests have been able to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2, the Chandrayaan 3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan 3 mission. चंद्रयान 3 का मिशन प्लान लगभग चंद्रयान 2 की तरह ही बनाया गया है। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियां चंद्रयान 2 के तरह ही हों। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और प्रोपल्शन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, LHBC, LDV और LHDAC का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। LDV जो स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लेराव यानी लेजर इनर्शियल फ्रीक्वेंसी एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान ट्रैजेक्टरी जनरेशन जो कि चंद्रयान 3 मिशन बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह बहुत ही एक्यूरेटली बताता है एक बहुत ही कठिन और जटिल कंपटीशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफी ऊंचे स्तर का टेस्ट रन किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट की सीमा को बढ़ाकर 4 × 2.4 जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहायक सिद्ध होगा। Apart from the sensors, Chandrayaan 3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. The Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided abundant remote sensor of moon. Equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIPS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe CHAST will measure the temperature profile and thermal conductivity of moon's regolith. The Rampa payload will carry out lunar ionosphere studies, while the laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeters. The propulsion module has not been left behind, and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. तो ये दोनों तो है क्या उसमें? We are minutes तो away सिर्फ ये from बीच the वाला start लेना है? of power descent. बाकी तो The सभी entire जगह power descent अच्छा, shall बाकी be तो carried अवेलेबल है out तो by नहीं the लूँगा। onboard autonomous landing ये sequencer वाला लेना है। or ALS, which is series of instructions एक बार आप preloaded कंफर्म to the करके lander बता दो क्या? module. किसी से पूछ के कि These ये दोनों तो instructions है, include the उनके commands to पहले be की कोर्स में? ये executed, बस लेना है ना, ये बस दूसरा data के to be लेना है। collected अच्छा। और and सिर्फ 3 दिन खाने के लिए analyzed, बस and लेना है। decisions to हाँ, be पहले made and 3 दिन की executed डोज है। autonomously ये वाली throughout the है। power descent. ये दवाई रख ले, 5 दिन तो अभी खाना ही पड़ेगा।
हाँ इसमें 3 दिन बोले ना मतलब इसी को बता रहे हैं, बाकी कोई सब रेगुलर चलेगा। रेगुलर वाला हाँ नहीं, ये जैसे दरअसल क्या है वाला हाँ हाँ चार जिसमें और आना चरणों में है बांटा गया है। रिव्यू सबसे पहले सर जी बोले कि एक दिन में आके थोड़ा थोड़ा हाँ, रिव्यू तो लेके लेना कर दो। अभी जाओ ये बस लेके चले जाओ मिडिल वाला ना? हाँ मिडिल वाला हाँ। बाकी रिव्यू तो ले आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ सर बोले है ना आते रहना, सैटरडे संडे नहीं रहूँगा बोले हाँ तो और बाकी फिर आते हाँ रहना है। और और जो चलेगा वो सब चलेगा। हाँ इसमें ये बस ऐड किया था इसको और सर लास्ट इसको नहीं देखे थे ना, इसलिए इसीलिए किए हैं। अच्छा ठीक है तो आप जा सकते हैं। हाँ व्हीलचेयर मंगा लें। हाँ रुको ना अभी गाड़ी बुला रहा हूँ। हाँ इधर ही लोग खड़े हैं। Located in Velalu, Bengaluru. The data is being acquired real time by GPS and is flown to the Mission Operation Complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground Direct लगा के intervention 10 once ml the बना के ALS takes charge. डायरेक्ट लगाए The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein 10 various ml pre-selections and uplinking of parameters for the डायल्यूट करके 10 autonomous ml landing डिसॉल्व sequence were carried out. डायल्यूट हाँ इधर The में whole लगा descent is divided into 4 phases: the rough braking phase, the attitude नहीं hold देती आप phase, fine braking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ, एल्टीट्यूड होल्ड फेज जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर चंद्रयान के 3 दो जानते हो महत्वपूर्ण चंद्रयान 3 सेंसर जानते हो कारा और डिनो और लासा चंद्रयान 3 लैंडर की ऊंचाई की गणना इट करेंगे। इज द लैंडिंग इस फेज टुडे के पूरा होते ही tonight लैंडर चंद्रमा की सतह 5:40 से pm कुल 6.8 किलोमीटर live की people ऊंचाई पर watching होगा। 40 lakh in official During Isro the channel rough YouTube braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1,680 meters per second to 40 लाख 358 आदमी meters देख per रहे हैं second. लाइव The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. अरे 50 लाख हो गया अब 1 करोड़ हो गया अब Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूप में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क आईडीएसएन 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडर लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा। इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग शून्य हो जाएगी। The scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the power descent, to the start of the power descent phase. जी हाँ, अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड होवरिंग करेगा। चंद्रयान 3 लैंडिंग करत ना ह्याच्यामध्ये ओके चंद्रा में तो ही लाइव चला तो चल देखा तुम हाथ का वो कहाँ गए मर फोटो में लाइव देखा तो ये आज लैंड कर चंद्रमा में सब लैंड कर सब लैंड आप इस समय अपनी स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में सब लैंड कर रहे मैं देख रहा हूँ कैसा होता है सभी मान्य गणों को देख सकते हैं, लाइव जो चला कि गया बहुत ही उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। लाइव अभी हम टेलीकास्ट लोग पावर डिसेंट शुरू होने से एक जस्ट कब कुछ हुई ही पता पल नहीं दूर है। लैंड
कि 5:30 बजे टाइम। हाँ तो कितना हुआ, 6 बजे थे अब। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग लगे 1 आध घंटे चलाई 30 सेकंड लगते ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में बढ़ा तो आवाज। आईडीएसन 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। तो हो गया, रोहित सब खत्म। चलो चलो ना। Dear viewers, ये तो दुनिया का फिर the pivotal power descent has begun दुनिया का and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. भयंकर बना है, 90 किलो में यहाँ से 10 किलो। मारा ना लगा मुझे जी तो हाँ, पड़े थे। अब हम देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। हम कितने दिखा था, तो नहीं दिखा था ना मैंने। Duking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे चलते थे ये रे एलियन चंद्रयान 3 है रही है। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. आरओसीसी अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर क्षैतिज दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. दर्द के इंजेक्शन लगवाए थे जी हाँ, अभी हल्का कर रहे हैं ना बुखार। चूंकि एलएस एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplifting of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the
The lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable altitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में सॉफ्ट लैंडिंग देख चंद्रयान के अभी तक नहीं गया थोड़ा 5 मिनट और है भाई बड़ी बात है क्यों लगा रहे हो कवर लगा दो सीधा तो वो गलत बोला बंद कर इसको हाँ आज कोई नहीं हाँ छोड़ दे आजा लैंडिंग दे क्या कर लेके नहीं लगा अभी अभी टाइम उतरने का 5 टाइम है 5 मिनट से 5 मिनट से ज़्यादा हो गया Chandrayaan 3 lander imager display. The lander imager is continuously giving नहीं बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है photographs of the moon surface, and that is also streamed here. चलना रे Currently, the horizontal velocity has been brought down, हो गया and लाइन the distance traveled is 574 kilometers. ये The लाइन current altitude is 27 kilometers, as can be seen on the screen. हाँ ये दिन बच गया थोड़ा सा बचा है ज़्यादा नहीं बचा है इसमें पता चल रहा है ग्राफ में हटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे होती है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर। वाह The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will 26 मिनट be बचा for है a ना duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement of the navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. क्या उखाड़ लेंगे जानती हो कि चंद्र पे क्या है वही समझ नहीं आया मैं सोच रहा हूँ नहीं उतना तो जाना भी तो खरीदते हैं पूरा को मत बताना खिलाएंगे नहीं मैम पूरा मुंह खोल देंगे नहीं मैं वही बता ना क्या उखाड़ेंगे हाँ आदमी खर्चा इतना अरबों करके जा रहे हैं मतलब वहाँ आवाज़ पता है वहाँ आवाज़ शक्तिशाली है अरबों खरबों एलियन बैठे वहाँ एलियन चंद्रयान एलियन बैठे वहाँ लगातार कम होती हुई दिख रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन लगातार कम होती हुई दिख रही है। परपेंडिकुलर हो रहा है दिख रहा है ना यहाँ पे तो बीचों पे दिख रहा है हाँ परपेंडिकुलर हो गया Currently 22 kilometers, which is again going to be coming down, and that is expected. एलियन मिलेगा वो For the viewers who have joined in now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has been traveled during this phase is 713.5 kilometers. अभी आप देख सकते हैं बीस मिनट हो गए तो 20 सेकंड में पूरा हो जाएगी देख ना तुम 23 बता देता टाइम हम ये कर सकते हैं कि नागा धर लोगे सर्दी पड़ेगा वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking. भाई साहब रियल टाइम में पिक्चर्स भेज रहे हैं यहाँ पे इस phase के बाद समझी हम जाएंगे Yes, ma'am. towards क्या समझी attitude hold phase, ये ना where we will be expecting चंद्रयान है sensor ना अपना updates वो from the अपनी laser फोटो खींच के and अपनी car भेज band रहा है altimeters. ये फोटो नहीं, इसलिए चमक रहा है।
जमा करो दे We can see the visualization of the lander module. We can also see the image moving towards the moon's surface. 746 किलोमीटर बचा The है current altitude is nearly 15.2 kilometers. ऊपर ही The चले distance जाएंगे traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. रन ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रॉटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के 20% बचा है वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग After the rough braking and the altitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the rough braking and the altitude hold phase. We shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. क्या कर ले कुछ नहीं The सैलरी whole अच्छा phase is मिलता being होगा मैम driven by वहाँ the autonomous landing सैलरी अच्छा sequencer, मिलता and होगा there is no intervention दिमाग भी from होगा ground. अच्छा उनका क्रैक क्या होगा सबको ये देख छोटे जी हाँ छोटे अभी आप अपनी सकती हैं कि जो करंट कौन सी एग्जाम दी लग गया मैम मैं भी जाऊँगा चंद्रमा के सतह से आईआईटी आईआईटी 10 किलोमीटर के आसपास आईआईटी आईआईटी वाले तो होते हैं जी हाँ ये हम सब अपने इसमें मेरी मम्मी भी है ना इसमें रिसर्चर साइंटिस्ट है ना मेरी मम्मी तो कोई भी जब होता है ना जैसे अभी तुम लोग ने देखा पूरा ग्राफ बना हुआ था तो वो कौन से मोदी जी इस पे मुड़ना चाहिए क्या होना चाहिए तो इसके पहले कैलकुलेशंस होते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स वाले आते हैं आईआईटी मैथमेटिक्स वाले ही करते हैं ना आईआईटी इंजीनियर्स करते हैं वो बिल्डिंग वाला काम करते हैं बहुत सारे लोग हैं इसमें। Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa, Johannesburg, to encourage us. मैं उसको वहाँ पे भी चैन नहीं है Yes, we are वहाँ privileged की मीटिंग to कर have लेता with फिर आ us जाता है वहाँ भी दोनों Honorable जन Prime के लिए Minister बोल of रहे हैं India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa, Johannesburg, to encourage us. ये भी कितना सा बच्चा है बस पार कर लिया है और फाइन ब्रेकिंग की हम इधर से ऐसे देख रहे थे आप देख सकते हैं एल्टीट्यूड 6 किलोमीटर बचा बस बहुत ही आसान से पाँच लैंडर फेज पाँच पार कर किलोमीटर लिया है और फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.2 किलोमीटर है From the इस फेज के mission दौरान operations team that the sensors are performing nominally. And we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for. We can hear from the mission operations team is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module, and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. ये एनिमेशन है क्या हाँ उसको बनाए बनाए उसको 3D बनाए जी हाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. 1.8 किलोमीटर हो गया मम्मी मेरी सांस होती है अफ्रीका में 1.2 किलोमीटर जी हाँ अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। उससे उधर लाइन है मम्मी को मेरे सामने कुछ मत बोलना मेरे पीछे बोलना We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ अब हम फाइन ब्रेकिंग फेज के एकदम करीब
हाँ, तालियों की गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए होवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो पथ निर्धारित किया गया है लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2 which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकेंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इस वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition.
आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार सेला sir we have achieved soft landing on the moon India is on the moon sir I request our honorable prime minister to address us and bless us thank you sir कितने रहेंगे वहाँ पर 3 दिन के थैंक यू भाई काम करते रहेगा फोटो देखते रहेगा मेरे प्यारे परिवारजनों वो तो गए जब हम अपनी आंखों के सामने जो बालू में है तो हम सीधे वो कहाँ गए हैं इसमें क्या है आस बनते हुए देखते हैं ये 4 5 चलो एक हाँ किसने कहा रही तेरे को डरे नहीं वो नहीं मेरे साथ है तुम्हारे साथ करने के जीवन की इंसान चेतना बन जाती ये पल अविस्मरणीय ये क्षण हो गया अभी उसको अभूतपूर्व उतर गया अब ना